يقرأ إني وسمك قوادي فقال يا أبوي يشمو إن جيرانية طيبة أنا راية جزيرة لله صلى الله عليه وسلم أوطن جدك كتك طيبة أولا سمك وقال السلام عليكم يا جزا يا رسول الله أتظن لي أقول ما كنت تذكر وقال عليك السلام يا ولدي الطيب حوضي قد أذنت لك فدخل ما كنت تذكر وما كانت إلا تحدث الذي يرسل قد أقبل السلام عليك يومه وقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وتمت أقوالي وقال لي يا أمو إني أجب عندك راية طيبة كأنها راية جزيرة لله صلى الله عليه وآله وقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكتاب فدعني رسلنا وكتاب وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك من أكبر الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكتاب وقال عليك السلام يا ولدي يا أمتي ستأذنت لك فدخل معهم تحت الكتاب وأقبل إليك ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا ولد يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشهد عندك رأية طيبة كان رأيتك وابن رسول الله فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكتاب وأقبل علينا بالكتاب وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي ما كنت تحت الكتاب قال له عليك السلام يا أبي ويا ولدي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكتاب ثم أتيتنا بالكتاب وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكتاب قال عليك السلام يا بنتي ويا بصرتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكتاب فلما سمع جميع تحت الكتاب يقبل رسول الله بطار الكتاب يومنا بين يديهم إلى السماء وقال لهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصيتي وهامتي لحمك لحمي وطعمه طعمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحسني ما يحسنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن طالبهم وعدو لمن أعطاهم ومحب لمن أعطاهم إنهم مني وأنا منهم وجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وأعدت أنهم لسائر فتساركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد يا ملائكة يتقن السماوات إني خلقت ما تمنى ولا هدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا قلقا يد ولا برق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكتاب وقال أمين جبريل يا ربي ومن تحت الكتاب وقال وزوجهم أهل بيت النبوة وما ذا الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوهما فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أهبط إلى الرسول ما أمطارة فقال له من قد أذنت لك فأهبط من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله أنا أشكرك السلام يكتب تحية كرامي ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء منية ولا أرض منية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا قلقا يدرو ولا بين يدي ولا قلقا يسري إلا لأجالكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وأتأذن لي يا رسول الله وقال رسول الله عليه السلام من الله إنه نعم قد أذنت لك فقطع جبريل ما تحت الكتاب وقال له إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله أن يذهبكم لسائر البيت يطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى الله يبني مجلسنا هذا تتكتاب من الفضل عند الله وقال النبي والذي بعث بالحق نبيا واستفاد برسالة نجيا ما ذكر قبلنا هذا بما كنا في أهل الأرض وفي جميع ملكيتنا ومحبنا إذا ونزلت عليهم الرحمة محبة الملائكة واستغفرت لهم إذ أن يتفرقوا فقال علي إذا والله موضنا ووضع شيئتي ولف الكعبة فقال النبي يا ثانية يا علي والذي بعث بالحق نبيا
واستفادة برسالة نبينا ما ذكرنا قبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع مشيتنا ومحبنا وفيه مقوم إلا وفرج الله همه ولا مقوم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجته إذا قضى الله حاجته فقال عليه والله كن وسيدنا وكذلك شيئتنا قوم سيدنا في الدنيا والآخرة ولم في الآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا عليك في كل شيء ولي وحافظا وقائدا وناصرا ونذيرا وإنها تسكن ورزقته وتمته فيها سبيلا اللهم صل على محمد وعلى محمد किसकी नजर में फर्ज है हुसैन के दरमेल के जमाना दरमेल के जमाना दरदेंगे है कौन यादगार अलियो बतौल के नाशाद
रखें को दिल भर के रोने पाए नजर हुसैन को दिल भर के रोने पाए नजर हुसैन को बाबा को रोए बच्चे तो ज़ैनब ने मना समझा के अपनी गोद में शफ़े ने सुनाए सीले किसी यतीम को आकर कोई लगाए देकर मौजूद बना पड़ा देकर मौजूद बना पड़ा नाई के सर के साथ रह गया मैं सर नंगे जाए को से छूट के आए जो ज़ैनब सुए वतान रोती थी जाके नाना के रोज़े पकास्तन गए फातिमा की खबर पा करती थी ये सुकना बर्बाद करना में आपका जमाल करना में आपका जमाल शिकवाना खैर का था न बाजार शाम का था जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का कुछ दिन रहे वतन में जो ज़हरा किया पर थी बहुत हुसैन से मिलने को बेकरार था दुश्मन इमाम यज़ीद सितम से मुमकिन न था कि मोरे उल्फत में मोर के ज़ैनब रहे वतन बदे ज़ैनब रहे वतन बदे पहुंचे करीबे शाम के जिल्द मुहशन आने लगे ज़ियादा शबे को बना गया एक रात आए जिसमें के दिल के मिले मुराद बुझा जल का ख्वाब दे सुनकर निशान थी गच्चे इसके दिल को खुश इंतखाब के बरगदार बरगदार के बरगदार बरगदार के शहादत में आया जिस बाग में वादा बरोगे कारवा दुश्मन नबी की आरवा बाबा ऐसा के आगे
गए
जा खुदा हाफिज़ मोहम्मद की जा खुदा हाफिज़ मोहम्मद की जा खुदा हाफिज़ शबी नबी हुसैन के लाल अकबर नौजवान खुदा हाफिज़ अकबर नौजवान खुदा हाफिज़ अलमदारी फौज झुकती थी सजदे में वो मजीद अदा
सरे पाक जमी बदर हजरत का जाम यजीद ने हमें लूटा दुहाई है नाना जब आया मैदान में को कर बैठ गई, मैदान में को कर बैठ गई। ककरों में की से गिला
के वज़ कुछ भी न मिला तेरा बिन न बांध सकी तेरा बिन न बांध सकी से लई हरे कमला बनवा ने मुरक़े खैरुल बशरवा क्या हुजूम था उस नूर है पर लगा है सितम यूं चुके के सजदे में होते हैं जैसे कमरती गले पर शीश ने शमशीर के दाम पड़ गए बदिया बला पड़ गए बदिया बला सरों को पीती पहले से बीबियां बातों गाए गए तो है जय ज़मां बातों गाए गए तो है जय ज़मां है किसे से कौन सी मातर बिछड़ गई सदमा उलट पुलट तो गले जा था बेकरार चिल्लाते थे शबिए पैगंबर माते
बेटा सही पाके बाजू को थाम लो, क्यों खेलते हो बाम को ऐ मेरे गुलजार, क्यों हाथ उठा उठा के पटकते हो बार बार आंखें को दुखी मेरा दिल है बेकरार। बेटा तुम्हारी माँ का तुम्हारा इंतजार, बेटा तुम्हारी माँ का तुम्हारा इंतजार। मैंने खड़ी है दरबार तेरे इश्तियाक में, अकबर तुम्हारे माना देगी पिला, कहते थे कि चला रब दे पिता, कहते थे कि चला रब दे पिता, ज़बानी के मुताबिक इतनी ज़बानी के मुताबिक पिता, जिसकी दुआई थाम लिया से जिगर अंगड़ाई लेके रख दिया जाएंगे नजर बजा, अंगड़ाई लेके रख दिया जाएंगे नजर बजा। आबाद लुटाशे वाला के सामने बेटे राजा निकल गया बाबा के साथ, बेटे का निकल गया बाबा के साथ। आज उस अजीम हस्ती का जिक्र है जिसके बगैर वाक़े करबला ना तमाम है। आज वो शहजादी का जिक्र है 55 बरस में जिसके खुले सर को आसमान ने नहीं देखा था। आज उस ज़ैनब का जिक्र है जिसकी चादर पर अली ने सजदा किया था। आप अंदाजा लगाएं कि जब 55 बरस ज़ैनब जब भी अपने घर से निकल कर अपने भाइयों के घर आती तो 18 जवानान बनी हाशिम तलवारों को बेनियाम करके रास्ते को रोक कर कहते कि खबरदार इधर कोई आने न पाए, शहजादी ज़ैनब की सवारी जा रही है। चंद महीनों में इतना बड़ा इनकलाब आ गया। वही ज़ैनब जिसने सर को किसी ने नहीं देखा, शाम गरीबा को जालिम ने ऐसा नैजा लगाया। अब जो नैजा फैला तो देखा उसको ज़ैनब की चादर आ गई। ज़ैनब ने मुराद का रुख किया, आवाज दी अब्बास, वो चादर चली गई अब्बास। अब ज़ैनब शाम गरीबा को कमर को कस कर टूटा हुआ नैजा हाथ में लिए हुए छोटे छोटे बच्चों को दिलासा दे रही है, कह रही उम्मे कुलसूम न घबराओ, रुकैया न घबराओ, सुकैना न घबराओ, ज़ैनब जिंदा है। तो शहजादी ज़ैनब ने वो कारनामा अंजाम दिया। अब सब कुछ आज लेके जाने गरीबा में लुट चुका। ऐसे में ज़ैनब ने देखा कि एक सवार आ रहा है। शहजादी ज़ैनब ने कहा कि आने वाले रुक जा, बच्चे अभी अभी रोकर सोए हैं, जो कुछ चाहिए सुबह आकर ले जाना। सवार आगे बढ़ता गया। ज़ैनब ने आने वाले सवार के लगामे फरस को थामा, कहा कि आने वाले तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ।
ने चेहरे पर से नकाब हटाया, पेशाब का ज़ैनब की ज़बां पर आया, बाबा अब आए हो। बाबा भरा घर उजड़ गया। बाबा अली अकबर के सीने पे बच्ची का फल लगा। ए बाबा, हुसैन मारे गए। सब कुछ अली ने सुना, ज़ैनब को सीने से लगाया, कहा ज़ैनब तुम आराम करो। ज़ैनब, अली अब यहाँ पर पहरा देंगे। ज़ैनब ने जी फिक्रा, कहा बाबा अब ज़ैनब को आराम कहा बाबा, मेरा भाई नहीं रहा, मेरा पास नहीं रहा। अब ये काफिला करबला से कूफा, कूफे से शाम के रास्तों को ज़ैनब ने फतह किया, दरबारों को ज़ैनब ने फतह किया। हर मुकाम पे ज़ैनब के खुतबे थे, यहाँ तक कि जालिम जब शाम के दरबार में आए और यजीद ये कह रहा था कि अली की बेटी ज़ैनब कौन है, बार बार जब सवाल कर रहा था तो फिजा सामने आ गई। कहा कि खबरदार, ये शहजादी ज़ैनब से कोई कलाम नहीं कर सकता। अब ये जब ये फिजा हबश की शहजादी थी, जब ये यजीद से कलाम कर रही थी, देखा तो उसके पीछे चंद हबशी जवान खड़े हैं, तलवारों को बेनियाम किए हुए। तो ये फिजा ने कहा कि तुम्हारे हमियत को क्या हुआ कि तुम्हारे मुकाम की शहजादी से एक यजीद ऐसे कलाम करता है। उन्होंने तलवारों को बेनियाम करके कहा कि यजीद ये हमारे मुकाम की शहजादी है, इससे ऐसे कलाम न करना। बस कहना था। ज़ैनब ज़मीन पर बैठी, मदीने का रुख किया, कहा नाना नाना, यही वक्त आ गया कि गुलाम और कलीजों के लिए तलवारें निकलती है, ज़ैनब के लिए कोई तलवार नहीं, कोई आवाज नहीं। हुसैन के चाहने वालों, ये ज़ैनब ने अपने सर की चादर को देकर, खुतबे देकर जुल्म को सहा है और दीन को और नाना के इस्लाम को बचाया। फिर जब वो मौका आया कि साल गुजर गया और हुसैन की 4 साला बच्ची दुनिया से गुजर गई, तो अब वो इनकलाब के आसार नुमाया हुए, जालिम ने रिहाई का हुक्म दिया। अब ज़ैनब आई, आके ज़ैनब ने कहा कि बेटा, सबसे पहले मुझे भाई पर मातम करना है, हमें करबला जाना है। यही कहकर ज़ैनब पहुंची है करबला और वहीं के मौके पर अब जब भाई की कब्र नजर आई तो बेसाख्ता ज़ैनब दौड़ी हुई आई, दोनों हाथों से कब्र को थाम कर कहा कि भैया ज़ैनब आई है, भैया भैया मेरा सलाम लीजिए, भैया ए भैया मैंने दरबारों को हिला दिया, मेरे शाम के दरबार उनको फतह किया भैया। ए भैया आपकी एक अमानत मेरे साथ थी भैया, मैं ला ना सकी भैया। ज़ैनब बहन कर रही थी, बहुत मातम किया, ज़ैनब ने खून के आंसू रोए। अब ज़ैनब निकल कर वापस आना चाहती है, देखा सारी बीवियां तो नजर आई लेकिन शहजादी रबाब नजर नहीं आती, तो देखा कि पाइंदी कब्र हुसैन शहजादी अपने सर को झुकाए हुए रो रही है। ज़ैनब ने कहा कि चलो भाभी अब अपने घर जाना है, तो बेकसी के आलम में शहजादी रबाब ने कहा बीबी, कहा चलो बीबी, कौन सा घर है बीबी, ये मेरे वाली की कब्र है, यही मेरा घर सो रहा है, एक बच्ची शाम में सो गई, मैं चलकर क्या करूं बीबी। फातिमा की आवाज आई कि नहीं रबाब चली जाओ, अब यहाँ पर फातिमा रहेगी। मैंने मजलिस को तमाम किया। हुसैन के चाहने वालों, ये अजीम शहजादी ज़ैनब है कि जब पहुंची है मदीना तो किसी ने नहीं पहचाना। अरे यहाँ तक वो छोटी सोहरा आकर यही पूछती है, ऐसी बीवी इतना बताना कि मेरी छोटी ज़ैनब कहाँ है। ज़ैनब ने बालों को हटाया, सोहरा मैं ही ज़ैनब हूँ, सोहरा
किया माँ की कब्र पर, नाना के रोजे को सलाम किया। अब वो ज़ैनब का ये आलम था कि वाक़े करबला के बाद ये बीबी कभी अपने घर नहीं गई, नहीं बैठी, एक एक करिए में जाती थी, लोगों को जमा कर कर करबला के मसाइब सुनाती। इतनी मजलिसें बर्पा की शहजादी ने, हर मुकाम में शहजादी ने हुसैन के परचम को बुलंद किया। जालिम ने दोबारा कैद कर दिया, ये सोच करके फिर इनकलाब आ जाएगा। मैंने मजलिस को तमाम किया। अरे बीबी शाम के करीब पहुंची, उस बाग में रोका गया। एक दरख्त था जहां पर हुसैन का सर लगाया गया था। अब तो हुसैन की खुशबू महसूस की, ज़ैनब आगे बढ़ी, एक मर्तबा दरख्त को थामा। भैया याद आ गए, बेख्तियार आंख से आंसू निकले, मातम किया ज़ैनब ने। वो जो बागवान था दुश्मन अहले बैत, देखा कि ज़ैनब क्रिया कर रही है, बेल चाल लेकर आगे बढ़ा। रसूल ने अमामा फेंका, फातिमा ने तमाचे लगाए, अली ने गिरबान झाँक किया। अब तो बेल चाल पड़ा ज़ैनब के सर पर। ज़ैनब ने कहा, अम्मा आओ, अम्मा। फातिमा की आवाज आई, आओ ज़ैनब, मेरी गोदी में आ जाओ। खुदाया हमारी अदादारी को कबूल फरमा, हमें कोई गम न दे सिवाय हमें हुसैन के। परवरदिगार नौजवानों के दिलों में अली की मोहब्बत को कायम दायम फरमा। हम तमाम को ज़ियारत मासूमीन से मुशर्रफ फरमा। तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। खुसूसन ज़ाकिरीन कराम, उलमाए इज़्ज़ाम, मरादीन कराम की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। परवरदिगार बीमार इमाम का वास्ता है, जो बीमार हार है उनको शिफाए कामिला अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजीज़ फरमा। हम तमाम को नासिरों में शुमार फरमा। मातम हुसैन। या बाज, या बाज, या बाज।